بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ظفر اقبال پاکستان کلب کمیونٹی کی طرف سے بحرین سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ آج ہمارے پاس محمد سکندر بھائی ہیں، ان سے ہم خصوصی انٹرویو لیں گے اور ان تمام لوگوں کے لیے میسج چھوڑیں گے جو پاکستان سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اور سکندر بھائی یہاں پر کب سے اور کتنے مہینے ہو گئے ان کو آئے ہوئے، کیسے آئے، یہ ساری سٹوری ان سے بتائیں گے۔ اور یہ اس وقت یعنی شوگر کے مریض ہیں اور ہم نے 2 سے 3 بار ان کی ایڈ بھی جو ہے نا وہ اپنے گروپ میں پوسٹ کی تھی ہیلپ کے حوالے سے۔ تو ابھی تک ہم ٹارگٹ تک نہیں پہنچ سکے کیونکہ ان کے وزٹ ویزے پہ جو جرمانہ ہے وہ تقریباً 400+ ہے۔ تو کام کے بڑے بہترین کاریگر ہیں ماشاءاللہ، یہ پینٹر ہیں۔ اور ہم نے بھی ادھر اپنی پاکستانی کلب میں کچھ ہمارا مینٹیننس کا کام ان سے کروایا تھا، اس ٹائم میں ماشاءاللہ کافی ایکٹیو تھے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے پیروں میں زخم ہو گئے شوگر کی وجہ سے، تو یہ شوگر کے مریض ہیں۔ تو میں آج ان سے تھوڑا سا انٹرویو لوں گا اور آپ لوگوں کے لیے میسج بھی انشاءاللہ دوں گا۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ اس میسج کو سب لوگوں تک پھیلائیں گے، فارورڈ کریں گے کہ ہمیں یہاں پر صحت مند لوگ جو ہے نا وہ باہر اپنے ملک سے آئیں، جو بندے تندرست ہیں۔ جو بندہ مریض ہے کسی بھی موذی مرض میں، جیسے کہ شوگر کا جو مرض ہے یہ بندے کو کام کرنے نہیں دیتا، یہ بہت خطرناک بیماری ہے، یہ انسائیڈ کلر ہے، یہ اندر ہی اندر سے آپ کو جو ہے نا وہ کھا جاتی ہے بیماری۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال چال ہے سکندر بھائی؟ کیسے ہیں؟ خیر وافیت سے انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سکندر بھائی میں آپ سے تھوڑے سے سوال کروں گا۔ آپ پاکستان میں کون سے علاقے سے ہیں؟ پاکستان سندھ لڑکانہ سے ہوں۔ پاکستان سندھ لڑکانہ سے ہیں، ماشاءاللہ جی۔ آپ کی اس وقت موجودہ عمر کتنی ہے سکندر بھائی؟ سر میری عمر جو کارڈ میں ہے ابھی تو 46 ہے، یعنی اس حساب سے 50 کے قریب ہو گیا آلموسٹ۔ جی سر۔ تو ابھی 22 سال سے میرا ڈائبٹک کا شوگر چل رہا تھا، بس وقت کے حالات سے تو میں یہاں آ گیا۔ تو یہاں پہ آتے ہی میرے سے مسئلہ ہو گیا، چلو وہ مسئلہ نہیں بتاتے کسی کو۔ تو ابھی 8 مہینے سے میں یہاں پہ ہوں۔ تو میرا شوگر کا یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اچانک میری شوگر پیروں میں پھوٹ پڑی، دونوں پیروں میں۔ تو ابھی 3 مہینے ہو گئے ہیں میں کام پہ بالکل نہیں ہوں۔ تو میں کسی اور دوستوں کو بھی یہ بولوں گا جس کی عمر زیادہ ہے اور 40 سے اوپر ہے تو وہ کبھی بھی ادھر سفر نہ کریں۔ اور اس کے بعد یہ جو ڈائبٹک کا پیشنٹ ہے، ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا کوئی بھی پیشنٹ ہے، کہ میں اس کو یہ کہوں گا ہاتھ جوڑ کے کہ باہر نہ نکلیں، جو بھی کرنا ہے وہ اپنے گھر میں کریں۔ مانتے ہیں انسان کے خواہشات ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، زندگی ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، میں اس کو پھر بھی ہاتھ جوڑ کے یہ کہوں گا کہ انہی حالات میں باہر نہ نکلے۔ یہاں پہ کوئی سنبھالنے والا نہیں، اللہ کے نام کی طرف کوئی انسان نکل جاتا ہے جس کو اللہ ڈائریکٹ اس کو اس ڈیوٹی پہ کرتا ہے کہ جا تو اس بندے کی خدمت کر یا کسی اور چیز کی خدمت کر۔ تو ایسے لوگ بہت کم ملیں گے آپ کو۔ تو آپ یہ مہربانی کرنا کہ کبھی بھی 40 کے اوپر آپ کے پاس کوئی بھی آپ پیشنٹ ہیں تو آپ مہربانی کر کے باہر نہ نکلیں۔ بہت بہت شکریہ۔ سکندر بھائی کا کہنا ہے کہ اگر آپ کسی بھی مرض میں ہیں، اگر دل کے مریض ہیں یا شوگر کے پیشنٹ ہیں، تو کیسے بھی حالات پاکستان میں ہوں آپ پاکستان سے باہر نہ جائیں۔ مطلب اپنی فیملی کے لیے، روزگار کے لیے آپ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنے مرض کا خیال نہ کرتے ہوئے بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں شاید ابھی بھی کچھ نہ کچھ اپنی فیملی کے لیے کروں۔ تو بہت اچھا میسج سکندر بھائی نے دیا آلریڈی انہوں نے۔ یہ سکندر بھائی آپ دسمبر میں آئے تھے بحرین میں لاسٹ ایئر یا جنوری میں آئے تھے؟ سر جون میں آیا تھا، ابھی 8 مہینے 7 مہینے 8 مہینے لاسٹ ایئر جون میں؟ جی بالکل، سردی تھی یہاں پہ
मैं सर्दी जून में में नहीं, सॉरी दिसंबर में बोलिए ना। हाँ दिसंबर में आया था सर मैं। जून में तो गर्मी होती जी, है, जी। दिसंबर में हाँ, सर। यानी आप तशरीफ लाए थे। जी जी। तो ये जो वीज़ा था आपका, ये 15 दिन का वीज़ा था? सर वहाँ पे बोला कि ये महीने का है, आप उधर जाएंगे, हमारे वहाँ पे कारिंदे मौजूद होंगे, आपके पास पैसे भी थे मेरे पास। अच्छा, तो आपने कितने पैसे वहाँ पे दिए? आप एजेंट के थ्रू आए थे? जी जी सर। ये जो ट्रैवल एजेंट, जी जी बिल्कुल। ट्रैवल एजेंसी वाले एजेंट्स हैं, इनके थ्रू आए थे? जी सर उनके थ्रू आया तो था। कितने पैसे दे के आए थे? सर 1,70,000 दे के आया था। एक साथ 1,70,000 रुपये सिकंदर भाई ट्रैवल एजेंट को दे के आए थे। तो यहाँ पे कोई बंदा, कोई रेफरेंस था जिसके पास आप आए थे कि मैं जाऊँगा और मुझे कुछ सपोर्ट मिलेगी या काम के हवाले से या वीज़े के हवाले से? किसी किस्म की रोशनी डाली है इसमें? सर उन्होंने कहा था कि उधर हमारा बंदा एयरपोर्ट पे खड़ा होगा, आपको लेके जाएगा। उधर जब मैं पहुंचा तो एयरपोर्ट में हमारे 2 सिंधी टीम थे, वो भी हमारे साथ मिल गए। वो भी बेचारे बहुत मासूम थे, मुझसे भी ज़्यादा मासूम थे। तो ना उनको बोलने था, ना उनके पास अरबी थी, ना उनके पास इंग्लिश थी, ना उनके पास कोई उर्दू थी। ऐसे समझो कि मैं उनको बस किसी कपड़े में बांध के लाइन में लेके आया, चलो निकले बाहर। तो मैंने वहाँ पे आके बाहर इंतज़ार किया, बंदे को फ़ोन किया जिन्होंने बोला था, जिनका नंबर दिए थे उन्होंने। जी। तो उन्होंने मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं की। फिर मैं उन्हीं तीनों बंदों के साथ उनके रूम पे चला गया। अच्छा, वो लोग रेगुलर बंदे थे? नहीं सर, उनके वो भी विजिट पे थे? वो भी विजिट से थे, मेरे साथ विजिट पे आए थे। हमारा चारों का यानी ग्रुप एक ही कागज पे था। अच्छा, तो उनके यहाँ पे अजीज रिश्तेदार कोई थे, मौजूद थे यहाँ पे, इधर ईसा टाउन में। सर फिर उनके बाद मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता रहा, उसके लिए मैं मिठाई लेके आया। 8 दिन तक मैंने मिठाई रखी। 8 दिन के बाद वो बंदा नहीं आया, अभी आ रहा हूँ, शाम को आ रहा हूँ। मैं कहा यार मैं तो 8 दिन से एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। वो बोला नहीं तुम बैठो एयरपोर्ट पे, मैं आ रहा हूँ। बस उनकी बातें ये सी। फिर मैं चला गया ईसा टाउन के बाद 8 दिन के बाद वो बंदा आया। मैंने मिठाई वो दोस्तों में बांट दी, उसको गुस्से से नहीं दी। मैं कहा चलो भाई, जो बंदा नहीं कर रहा। फिर सर उसके बाद मैंने बोला भाई आप मेरे को उस बंदे का नंबर दें जिसके लिए आपने भेजा है। अभी मेरा ये विजिट बढ़ता जा रहा है, मेरे पास पैसे भी हैं, मेरा वीज़ा कहीं पे लगवा दें। मैं एक्सपर्ट हूँ भाई, दुनिया के मैं काम जानता हूँ, मैं टाइल का काम जानता हूँ माशाल्लाह। बेसिकली जैसे मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया, आप पेंटर हैं पेशे से? सर मैं पेंटर हूँ, ये टाइल का काम आधा से मैं ज़्यादा जानता हूँ माशाल्लाह। और सर ये आप इससे पहले कौन कौन सी कंट्रीज में, किन किन मुल्कों में जाके जो है ना विजिट कर चुके हैं? या सर मैं दुबई गया हूँ। दुबई 16 महीने सर। अच्छा। हाँ सर, उसके बाद कुछ साल में सऊदी अरब में रहा माशाल्लाह, यानी मिडिल ईस्ट में काफी चक्कर आपके लगा। उसके बाद में सर इधर से ईरान गया घूमने। ईरान खाली घूमने के लिए गए थे? नहीं सर, रोजी के लिए गया था। उधर भी मेरा ये पैरों का मसला हो गया, उधर भी मेरे दोनों पैर फट गए बिल्कुल। तो अभी तो रोजी के लिए इंसान तो करता है ना, क्या करना। सिकंदर भाई, हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी ग्रुप में आपके लिए हमने मदद के लिए अपील की हुई है और कुछ हमें पैसों की मज़ीद ज़रूरत है। हमारे पास जो अब तक कलेक्शन हुई है, आपको पता है 240 दिनार हमारे पास हुए हैं। तो मज़ीद हमें 400 प्लस दिनार चाहिए, जो खाली फ़ाइन है आपका यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके कोई दोस्त जानने वाले हैं जो टिकट आपको जो है ना वो भेजेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमें जितने भी हमारे यहाँ पे मुखय्यर हज़रात हैं, सिकंदर भाई के लिए थोड़ा बहुत जो है ना वो सपोर्ट के लिए फ़ंड जो है ना वो भेजें, ताकि हम इनको जल्द से जल्द भेज सकें। इनके पैरों से नीचे जो है ना वो ऑलरेडी ज़ख़म फैल गए हैं। तो जब ज़ख़म फैल जाता है पैरों में तो ये बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करना, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि विज़िट वीज़े पे मेडिसिन नहीं ले सकते हम, वो हमें सिर्फ फार्मेसी से जाके ख़रीदना पड़ती है, जो कि बहुत महंगी है, कोई भी बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनके लिए मदद करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें इंशाल्लाह, ताकि हम इनको जल्द से जल्द भेज सकें पाकिस्तान और वहाँ पे जाके अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। सिकंदर भाई, उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जैसे ही आप पाकिस्तान जाएंगे उसके बाद घर पे ही बैठेंगे, अपना ट्रीटमेंट करवाइएगा, फिर आगे कहीं नहीं निकलिएगा। लास्ट आपसे मैं गुजारिश है कि ये अपने नौजवानों के लिए या अपने हम वतनों के लिए छोटा सा मुख्तसर सा मैसेज दीजिएगा। आपने ऑलरेडी देखा कि यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है और यहाँ पर हमारे लोग जो काम करने वाले भी नहीं हैं वो भी वहाँ से बिस्तरा बोरी बंद करके अपने यहाँ बैग उठा के आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क है, बहुत सख्त काम है। तो कोई मैसेज उनको ऐसा दें ताकि ये मैसेज आपका उनके दिल को लगे, उनको पता लगे कि ऑलरेडी मैं यहाँ पे हूँ और मैं सफ़र कर रहा हूँ, और उनके लिए एक नतीजा खेज जो है ना
मैसेज जो है ना वो जाए। जी सर मैं ये कहूँगा कि जो पाकिस्तान में एजेंट वगैरह हैं कि बच्चों को वर्क लाते हैं कि जाओ तुम इस कंट्री में जाओ, इस कंट्री में जाओ, खुदा ऐसा ना करें। आपके पास कोई प्रोफेशनल काम है, बिजली का काम जानते हैं, इलेक्ट्रिकल हैं आप, जगह बनाने वाले राजे हैं आप, मिस्त्री हैं आप, तो फिर आप सफ़र करें, और वो भी विजिट पे कभी ना आएँ। चाहे तनख्वाह आपको थोड़ी मिलती है, मैं मानता हूँ इस बात को, तनख्वाह थोड़ी मिले पक्का वीज़ा ले लो। यहाँ पे ऐसे फ्रॉड लोग बैठे हैं, अपने अपनों को यहाँ से काट लेते हैं, फिर अपने रोडों पे रोते रहते हैं। मैं तो अपने दोस्तों से लूटा हुआ हूँ, मैं भी उसका क्या शिकवा शिकायत करूँ, मैं उसको क्या भी उसको बद्दुआएं दूँ। चलो अल्लाह देखने वाला है, बस ये मेहरबानी करना, मैं आपको फिर भी हाथ जोड़ के खुदारा ये बोल रहा हूँ, किसी भी गुंडे के हाथों नहीं फंसना। वीज़ा लेना हो तो अपने पास कोई प्रोफेशनल कोई डिग्री हो, कोई काम हो, तो उसके आप बिना जवाब पे आप यहाँ मुल्क में आएँ। और यहाँ पे तो काम का बिल्कुल हालात ख़राब है भाई। दुनिया से मैं बहुत ममालिक घूम चुका हूँ, जितनी सैलरी यहाँ पे कम है, कितनी भी किसी भी मुल्क में ऐसी सैलरी नहीं है। आप सऊदी अरब में जाएं, दुबई में जाएं, चलो आप ईरान में जाएंगे ना तो कम से कम फिर भी आपके 50,000 आप कमा सकोगे। तो कितना ईरान की कम कंट्री है, कम उसके पैसे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, आप मेहरबानी करें, मैं आपको फिर भी हाथ जोड़ के खुदा ये कहूँगा कि अगर आपके पास कोई है बड़ा प्रोफेशनल काम है, आप बड़े कोई काम जानते हैं, तो फिर आप आ जाओ, और वो भी पक्का वीज़ा लेके। ऐसे नहीं आना विजिट पे, ऐसे ख्वार हो जाओगे भाई। एक पैसे आप और भरोगे, यहाँ पहुँचेंगे आप, फिर आपको बोलेंगे भाई 300 दिनार, 600 दिनार, 700 दिनार दें तो हम आपका विजिट वीज़ा चेंज कर दें। भाई आप जो वो 3 लाख 4 लाख रुपए भर के यहाँ आए हो, तो वो किस खाते में गए? तो इसी से पहले आप होशियार रहें और इन लूटने वालों से थोड़ा बचिए। वो आपको क्या बोलेंगे, ओ भाई वहाँ के 100 का 3.5 लाख बनते हैं। अल्लाह गवाह है, मेरे को ऐसे उन्होंने बोला कि वहाँ का 100 दिनार का आपके 3.5 लाख बनते हैं। क्या यार तुम 100 महीने में तुम 500 भी नहीं कमा सकोगे? तुम इतने एक्सपर्ट बंदे, जाओ यार जल्दी करो। ये हालात है भैया। यहाँ पे मैं ये कहूँगा खुदारा कोई भी किसी एजेंट के हाथ में ना फंसे। बहरहाल जो भी करें काम आप सोच समझ के करें, बाद में रोते रहोगे मेरी तरह भैया। बहुत बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई का मैसेज, माशाल्लाह ज़बरदस्त मैसेज उन्होंने दिया अपने लोगों के लिए, और दिल की गहराइयों से उन्होंने अपने तासरात, अपने जज्बात बताएं। तो ये मैसेज हमारा सब लोगों के साथ शेयर करें, ख़ास तौर पर जो हमारे पाकिस्तान नौजवान लोग हैं वहाँ से, जो बाहर के लिए एक ख्वाब रखते हैं कि बाहर के मुल्कों में जाके शायद उनकी जो सेटलमेंट है बहुत जल्द हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत मुश्किल हालात होते हैं यहाँ पर, परेशानी उठाना पड़ती है। तो अपना आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जैसे सिकंदर भाई ने कहा, वहाँ पे जो एजेंट्स हजरात हैं उनसे बचें और अपने माँ बाप का पैसा जो है ना आप ऐसे ज़ाया ना करें। जो लोग स्किल्ड वर्कर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वही पाकिस्तान से बाहर आने की कोशिश करें, ताकि वो उनको अपने ऊपर एतमाद होता है कि वो जॉब जो है ना वो तलाश कर लेंगे और सेटल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको नई वीडियो आने वाली मिल सके। और इसी के साथ इंशाल्लाह हम इजाज़त चाहते हैं, और हमें फीडबैक देना ना भूलिएगा। मैसेज कीजिए, हमारा नंबर है 36876633। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।